Hello everyone. This is Suraj Kumar, and today I am here to discuss and to tell you my experience about SSB till date. No, SSB, that is Service Selection Board. So as we all know that as a defense aspirant, I was also a defense aspirant until now, right now as well. But as a defense aspirant, we all know that there are certain examination like NDA, CDS, FCAT, or certain technical entry schemes, TES, and technical graduate scheme, and other like that is NCC, uh, direct through NCC direct entry. So in these, uh, you will clear the written examination sometimes, and कुछ में रिटन एग्जामिनेशन नहीं है जैसे TES वगैरह में. तो उसके बाद देर आफ्टर फॉर इंटरव्यू यू विल रिपोर्ट टू SSB, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड. अगर आपका एयरफोर्स का है तो आप AFSB जाते हो, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड. अदरवाइज आपका आर्मी का है तो SSB जाते हो, है ना. कोस्ट गार्ड का है तो आप CGSB जाते हो नोएडा में, कोस्ट गार्ड सिलेक्शन बोर्ड. सो आप वहाँ जाते हो इंटरव्यू देने के लिए, एंड इट्स बेसिकली अ 5 day प्रोसेस in which the first part consists of a screening test, and the second part consists of the four-day procedure in which there are a lot of tests including your psych, GTO, personal interview. Thereafter you will have your conference and all. So all these things together makes a 5 day process, and SSB is basically a 5 day process, and you have to be there, you have to stay there for whole 5 day. Thereafter you will take participate in all those tests, you will perform, and based on your performance you will get recommended or not recommended, right? So in that way it happens. And let me tell you that at SSB is a very scientific process, and apart from that it is a toughest interview till date of the world. I'm telling you that it is the toughest interview in the world right now. So ये इंटरव्यू बेसिकली बढ़िया है और बहुत साइंटिफिक है, एंड based on that the candidates are selected that if they have certain types of qualities or not. If they have, then they will definitely get selected, otherwise they will not. So if they have officers like quality, because through SSB, through all these examination, you are going to become officer in Indian Armed Forces. You will have to lead your men. Apart from that, you will take bullet for them and they will take bullet for you. So in that type of scenario you are going to live, and in that type of activity and experience, and apart from that missions, all these things you will do with them. So for that you have to have certain types of qualities, like we call, or they call, like officer like qualities. You will have to be motivated, responsible, you will have to be dedicated. Apart from that you will have to be like whatever you have started you will have to finish it. All these things, there are lots of things that in which leadership qualities have a lot of things. So all these things you need to have for being a successful leader, to lead your men effectively. So in that way you are going to give your performance, and they will check with these tests that all these qualities are there in you or not. If you have such qualities, then you will definitely get selected. Now coming to my experience right now, well friends, I have always aspired to become an officer in Indian Armed Forces, and for that I have always given all those armed forces examination till now. I have given NDA multiple times, I have given FCAT, CDS, Coast Guard, all these examination I have given. Even I have given Air Force XY examination जो हुआ करता था पहले, है ना. Right now it is Agniveer. So yeah, I have part, and मेरा ऐसा था कि जाना है तो डिफेंस में ही जाना है. Whatever I will do, I will. अगर मैं ऑफिसर नहीं बनूंगा तो मैं कमीशन ऑफिसर नहीं बन पाऊंगा, तो मैं वो एज अ जवान भी ज्वाइन करूंगा, बट आई विल ज्वाइन इंडियन आर्म फोर्सेज. एंड टिल डेट
right now still I am preparing and I am giving all those examination. But ये क्या है, ये sometimes it happens that yeah, you are not getting into it, but yeah, eventually if you keep trying you will definitely get. And dreams, yeah, dreams do uh, come true. So no worries. And apart from that, what I believe, that if I have opportunity, I will apply, I will try. Till date, I will not get success, and eventually, I will definitely get success. And I have seen many of them, many of my mates, and apart from that, many of my knowns have been success. And you also know that sometimes a candidate are getting into it in his seventh attempt, eighth attempt, 10th attempt, even 15th attempt. And I feel I remember last SSB I went. And in that there was a candidate who was giving his 27th attempt. So it was literally very motivating, and he was very determined towards Indian Armed Forces. But yeah, he was not being successful, but that doesn't mean you are not successful in your life and you you fail in your life. So yeah, there are certain aspects as well where people can do very exceptional things. Like we have certain examples of APJ Abdul Kalam. He was also dedicated to join Indian Air Force. But yeah, he couldn't clear SSB and he couldn't join Indian Air Force. But yeah, he became the president of India later on. Apart from that, in space sector, he did a marvelous job. So yeah, I feel these things. Apart from that, we can see an example of Amitabh Bachchan. He has also been not recommended from SSB. So yeah, all these things together will not certify you, give you that you will fail in your life. That is not the thing. Now let's come to my experience right now. First of all, let me tell you the 5 day process. All right. So first day, you will have your screening test when you report to your SSB. So you will have your screening test, and in that test, almost 70 to 75% candidates are screened out. उसी दिन उनको वापसी भेज दिया जाता है, राइट. सो उस दिन होता क्या है, फर्स्ट डे when you will report, you will have to give your OIR test, that is Officer Intelligence Rating Test. It's basically a reasoning test. You will have to give your 2 reasoning papers of half an hour each, and जिसमें 50-50 क्वेश्चंस होंगे ऑलमोस्ट. तो आप उसको पे करते हो. थोड़ा बहुत ये वेरी करता है एंट्री के लेवल पे, आप एनडीए के थ्रू जा रहे हो और कौन से बोर्ड पे रिपोर्ट कर रहे हो, उस हिसाब से टाइमिंग का और नंबर ऑफ क्वेश्चंस का थोड़ा बहुत और टफनेस का भी वेरिएशन होता है. अदरवाइज आपको OIR टेस्ट देना होता है, ठीक है. देर आफ्टर आप 2 पेपर OIR टेस्ट के दे देते हो, आपकी कॉपी जमा हो जाती है. यू विल गेट 5-10 minutes टाइम फॉर रिफ्रेशिंग योर सेल्फ. Apart from that, thereafter you will appear for PPDT test, picture perception and description test. And in that test you will see a picture of 30 seconds, very hazy picture. And 30 seconds वो फ्लैश आउट होगा किस पे, एक स्क्रीन पे, जो कि आपके मतलब जहाँ पे आप बैठोगे हॉल में, वहाँ पे प्रोजेक्टर लगा होगा. सो इन दैट, थ्रू दैट प्रोजेक्टर वो फ्लैश होगा एक वेरी हेजी टाइप का पिक्चर, ओनली फॉर 30 सेकेंड. एंड आपको शीट्स दिए रहेंगे, एंड उस 30 सेकेंड्स आपको ऑब्जर्व करना है उस पिक्चर को. देयर आफ्टर यू विल राइट अ स्टोरी based on your perception, based on your observation, what you have seen in that picture. And you will have to write a positive story, complete positive story, जिसका आउटकम पॉजिटिव हो, जो कि आपके माइंडसेट को दिखाए, माइंडसेट पॉजिटिविटी को दिखाए, है ना. तो यू विल राइट अ स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी 4 minutes में, विद इन 4 minutes, ठीक है. एंड उससे पहले आपको 1 minute का टाइम देंगे कि व्हाट यू हैव सीन, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मेल और फीमेल, मूड पॉजिटिव नेगेटिव, जो भी है एक बॉक्स दिया रहेगा साइड में, उसमें आपको मेंशन करना होगा. एंड देयर आफ्टर
एक्शंस लिखने होंगे कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द पिक्चर एंड व्हाट यू थिंक, व्हाट कम्स योर इन योर माइंड आफ्टर सीइंग दैट पिक्चर फॉर 30 सेकेंड। तो आप एक्शन शॉर्ट में समझ लो कि आप हेडिंग लिखते हो वहाँ पे अपने स्टोरी का, और वो उसके लिए आपको 1 मिनट मिलता है और उसके बाद स्टोरी के लिए 4 मिनट मिलता है। सो टोटल ये कितने देर का टेस्ट है? 5.5 मिनट का। 30 सेकेंड स्टोरी, 1 मिनट आपको कैरेक्टर्स और एक्शन लिखने के लिए, 4 मिनट आपको स्टोरी लिखने के लिए। ये जब होता है तो आपका शीट ले लिया जाता है। देर आफ्टर आपको 2-4 मिनट 5 मिनट मिलते हैं, 10 मिनट, एंड देर आफ्टर यू विल गो इन टू अ हॉल, जिस हॉल में आपका ग्रुप डिस्कशन होता है बेस्ड ऑन योर परसेप्शन एंड योर स्टोरीज। तो आप स्टोरी जो भी आप लिख के रखते हो वहाँ पे आप हॉल में जाते हो। हॉल में आपके तीनों असेसर होते हैं, जीटीओ होते हैं, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर, उसके बाद इंटरव्यूइंग ऑफिसर होते हैं, उसके बाद साइकोलॉजिस्ट होते हैं। तीनों ऑफिसर्स बैठे होते हैं। आपको यू शेप्ड में 15-16 बच्चों को मतलब ग्रुप बना के बैठा दिया जाता है। देर आफ्टर इंडिविजुअल नरेशन करते हैं एवरीवन विद इन 1 मिनट ऑफ टाइम। सभी अपना अपना इंडिविजुअल स्टोरी का नरेशन करते हैं, व्हाट दे हैव परसीव्ड एंड व्हाट दे हैव रिटन, सो बेस्ड ऑन दैट। और जैसे ही लास्ट कैंडिडेट का नरेशन ख़त्म होता है, देर आफ्टर एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली जैसे ही ख़त्म हुआ उसी वक्त जीडी शुरू हो जाता है। और जीडी का मोटिव होता है कि एक कॉमन स्टोरी पे आना, ग्रुप को एक कॉमन स्टोरी पे लाना, कंसेंसस पे बेस्ड ऑन दैट पिक्चर। पूरा ग्रुप एक कॉमन स्टोरी पे आता है डिस्कशन करके, और एसेसर बाद में बोलते हैं कि ओके नाउ एनी ऑफ यू कैन नरेट द कॉमन स्टोरी दैट द ग्रुप हैज़ डिस्कस्ड सो फार। तो उसमें से कोई भी आप जिसको नॉमिनेट करते हो या जो भी उठ के खड़ा, मतलब जो भी खुद को आगे करता है वो आगे अपना कॉमन स्टोरी बताता है, एंड देयर आफ्टर आप फिर उस रूम से बाहर आ जाते हो। सो ऑल दिस प्रोसेस आर देयर, ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट में होता है। एंड बेस्ड ऑन योर OIR के मार्क्स और स्टोरी आपका कैसा था, कैसा लिखा था और डिस्कशन कैसा हुआ, नरेशन कैसा किया, बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस आपको बाकी के 4 दिन रखा जाता है या फिर नहीं रखा जाता। आपको उसी दिन स्क्रीन आउट कर दिया जाता है। जो जिनको किया जाता है वो चले जाते हैं, जिनको स्क्रीन इन किया जाता है बाकी के 4 दिन वो रहते हैं, और नेक्स्ट 4 डेज जो होता है उनका डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट चलता है। तो इस वे में आपका पहला दिन स्क्रीनिंग होता है, और इसमें अगर 200 बच्चे हैं तो 25, 30, 35 बच्चे रहते हैं, बाकी सारों को पहले दिन ही छांट दिया जाता है। ठीक है, तो स्क्रीन आउट हो जाता है वो। अब ये 25-30 बच्चे बाकी के 4 दिन रहते हैं, और वो अपना साइक टेस्ट देते हैं, जिसमें टैट है, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट, वैट है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, SRT है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, और SBS सेल्फ डिस्क्रिप्शन। ये साइक टेस्ट हो जाता है। उसके बाद GTO के टेस्ट होते हैं। आप GTO में ग्रुप डिस्कशन करते हैं 2 टॉपिक्स पे, देर आफ्टर लेक्चरेट देते हैं। उसके अलावा आप GP ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज भी करते हैं। उसके बाद ग्राउंड पे आप इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स भी करते हैं। उसके बाद आप कमांड टास्क भी करते हैं, PGT भी करते हैं, HGT भी करते हैं, है ना, और ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस भी करते हैं। ऑल दिस थिंग्स जो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं, टोटल 9 टेस्ट होते हैं GTO में, आप उसको उसमें परफॉर्म करते हैं बेस्ड ऑन योर प्रिपरेशन। आप वहाँ परफॉर्म करते हैं अच्छा से अच्छा, एंड देयर आफ्टर आपका इंटरव्यू होता है बीच के किसी दिन में। आपको बता दिया जाता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है जो कि बोर्ड के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जनरली लेते हैं, या जो भी इंटरव्यूइंग ऑफिसर होते हैं वो लेते हैं। तो आप इंटरव्यू देते हैं। उसके बाद लास्ट डे आपका कॉन्फ्रेंस होता है, और कॉन्फ्रेंस में बेसिकली आप मतलब पूरे बोर्ड में जितने भी असेसर होते हैं वो सारे कॉन्फ्रेंस के दिन मौजूद होते हैं विथ प्रॉपर ड्रेस, है ना, और आपसे थोड़ा मतलब बातचीत होता है कि हाउ वाज योर स्टे एंड एवरीथिंग फाइन और नॉट, एनी सजेशंस लाइक दैट, ऑल दिस थिंग्स होता है। ज़्यादा कुछ उस दिन बात नहीं होता है, 1-2 मिनट का चर्चा होता है। हाँ, इन केस ऑफ डाउटफुल कैंडिडेट, इफ़ दे आर in doubtful situation that whether to recommend this candidate or not,
उस केस में समटाइम्स इट टेक्स लिटिल बिट लॉन्गर टाइम, अदरवाइज वो 1-2 मिनट का काम होता है। देयर आफ्टर योर कॉन्फ्रेंस एंड बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन ऑल दीज टेस्ट आपको रेकमेंड किया जाता है और या फिर नॉट रेकमेंड किया जाता है। हाँ, बात रही कि स्क्रीनिंग के बाद का जो टेस्ट होता है टैट वैट, मतलब साइक में, जीटीओ में और पर्सनल इंटरव्यू में, इसका हम प्रॉपर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी एक ब्रीफ इंट्रो दे दिया, स्क्रीनिंग ऑलमोस्ट आपको पूरा बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में पूरा साइक के बारे में जानेंगे कि टोटल साइक टेस्ट में कितने टेस्ट होते हैं, क्या क्या होता है और कैसे होता है और क्या करना होता है आपको, है ना। देर आफ्टर तो इस वे में हम इस सीरीज़ को चलाएंगे और नेक्स्ट वीडियो आएगा। और लास्ट में, मतलब पूरे सीरीज़ के लास्ट में मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि टिल डेट मेरा एसएसबी का एक्सपीरियंस क्या रहा। समटाइम्स इट हैपेंस दैट रिकमेंडेड कैंडिडेट से भी आपको कुछ सीखने को मिलता है, बट मेनी अ टाइम्स इट ऑल्सो हैपेंस कि आपको बहुत कुछ नॉट रिकमेंडेड कैंडिडेट से भी सीखने को मिलता है। बट दैट डजेंट मीन आपको कुछ ना कुछ इस सीरीज से सीखने को ही मिलेगा एंड इट विल इन्हांस योर प्रिपरेशन। सो वॉट एवर आई विल टेल यू, it will definitely enhance your preparation. So good luck for your preparation and stay safe and keep doing well. Thank you so much and have a nice day. We will see you in the next video.